آپ اپنے سیاسی مخالفین کے منہ میں گولیاں مارتے تھے. لاہور کے ایک بزنس مین نے جس نے پی ٹی آئی کو فنڈ کر دیا، آپ نے اس کو دھمکیاں لگوائیں پولیس کے تھرو. ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، اس غریب سے جب تک حمزہ شہباز کو بتا نہیں آپ نے دلوا دیا، پارٹی فنڈ میں پیسہ نہیں دلوا دیا، آپ نے اس کی جان نہیں چھوڑی. نہ بزنس مین آپ سے محفوظ تھا، نہ آپ کے سیاسی مخالفین آپ سے محفوظ تھے، نہ عام عوام محفوظ تھی. یہ جو میں نے 4-5 کے آفیسرز کا نام لیا جو اس ٹائم ایک خوف و ہراس کا سما جنہوں نے برپا کیا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کس مخالف کو آپ نے کہاں پہ مار دینا ہے، تو کیا یہ ہم کروا رہے تھے؟ تو بنیادی طور پہ یہ جو پولیس گردی کا کلچر تھا، اسی کے اوپر ایک بات یاد رکھیے گا، جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہوتا. جو کرپٹ آدمی پولیس کے سر کے اوپر بدماشی کرتا ہے وہ خود کبھی بہادر نہیں ہوتا. آج عوام کو نظر آ گیا کہ صرف ایک پولیس آفیسر مرضی کا نہیں لگا، جس کو فون کر کے دھمکایا نہیں جا سکتا، تو سیاسی لوز موشن ہو گئے تمام لوگوں کو. جن کے منہ بند تھے، جو سائلنٹ موڈ پہ تھے، آج انہیں منہ کی بواسیر ہو گئی ہے، دوبارہ بار بار بول رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس سے نظر آتا ہے کہ جب آپ کے داماد اعلیٰ نے سی سی پی او کو فون کیا چند دن پہلے اور سی سی پی او کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی لاہور میں، اور آگے سے سی سی پی او نے شٹ اپ کال دی، اس ٹائم آپ نے نہیں سوچنا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے؟ ایک پولیس آفیسر کو کسی صورت بھی بدتمیزی نہیں کرنی اس سے آپ نے. لیکن پولیس تو آپ کے گھر کی باندھی تھی، آپ پولیس کو استعمال کرتے تھے. جو میں نے آپ کو بتایا 100,000 لوگ مروا دیے آپ نے اپنے مخالفین، تو آپ کے لیے تو پولیس تھی یہ چیز. لیکن اب آپ کو پیغام یہ ہے کہ اب گلو بٹوں کی اور آپ کی وہ پولیس گردی کا زمانہ ختم ہو گیا. انڈیپینڈنٹ پولیس لگے گی، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ قانونی طور پہ، میں دوسرے طریقے سے نہیں کہہ رہا، لیکن قانونی طور پہ آپ کو لمحے پالیں گے. اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ لمحے پالیں گے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کرواتے تھے کہ مخالفین کو تھانے لے جا کے چتر ڈلواتے تھے. ہم لمحے پالیں گا کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ قانون کی کارروائی ہوگی. آپ جو ہر نیب کی پیشی پہ فرمائشی طور پر اپنے کسی نہ کسی بندے کو کہہ کے اپنی گاڑی پہلے رکھوا لیتے ہیں لاہور میں، پھر آپ وہاں پر 2-3 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں، تو یہ وہی ایک بہت بڑا ڈان تھا نا جو ایک پولیس آفیسر کی اپوائنٹمنٹ پہ پوری نون لیگ جو ہے وہ سربا کفن ہے اور وہ سوچ رہی کہ کچھ بھی ہو اس کو ہم نے ختم کرنا. اور ابھی پتہ چلا ہے، اگر میں درست ہوں تو ابھی مجھے کسی دوست نے بتایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے ایک بڑے سلجھے ہوئے شخص جن کی میں اس رابطے سے قدر کرتا ہوں کہ وہ اچھا بولتے ہیں، ملک احمد خان، انہوں نے ایک رٹ کی ہے کہ حکومت نے آئی جی صاحب کو غلط چینج کیا ہے اور سی سی پی او کو غلط اپوائنٹ کیا ہے. جناب حکومت آپ کی مرضی سے کریں گے؟ اب حکومت نے اگر پولیس آفیسرز یا سرکاری ملازمین بھی نہیں اپنی جو منشور کے مطابق لگانے جس میں عوام کو ریلیف ملے، تو کیا پھر آپ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم؟ یہ ہم آپ سے پوچھ کے لگائیں گے ملک صاحب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاہور میں قبضہ مافیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تھا، ایک بندہ جس کے پلاٹ پہ قبضہ تھا اس نے بار بار پولیس کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا، اس کو کہا، ڈی ایس پی سے رابطہ کیا کہ میری جان کو بچایا جائے، اس کی جان کو نہیں بچایا گیا، بلکہ وہ کوئی اتنا امیر آدمی بھی نہیں تھا، موٹر سائیکل پہ تھا بیچارہ. 2 قبضہ مافیا کے جو کھوکھر برادری سے تھے انہوں نے اسے گن ڈاؤن کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا. 15 دن سے وہ ایٹ لارج تھے. نیا سی سی پی او آیا، اس نے ودن فیو آورز ان مجرموں کو گرفتار کیا. یہ جو بزنس کمیونٹی فیصل آباد کی ہے یا لاہور کی ہے یا عام شہری ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوف و ہراس میں رہیں، کہیں پہ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے جو پالے ہوئے گنڈے ہیں، آپ کا جو پالا ہوا قبضہ مافیا ہے اس کے تھرو آپ قبضہ کر لیں؟ اب یہ نہیں چلے گا. آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ عوام کی ریلیف کے لیے پولیس کو کام کرنے دیں، اور پولیس کے بھی وہ افسران جو ان کے اما پہ کام کرتے رہے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان پولیس افسران سے بھی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایوری ڈے از ناٹ اے ہالیڈے. برائے مہربانی اپنا قبلہ آپ بھی درست کریں، قانون اور آئین کے تحت کام کریں. جو آپ کا کام ہے اپنے ان جو آپ کے سیاسی پرانے ریلیشن شپ ہیں ان کی بیس کے اوپر
आप अपनी जो आपका हल्फ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उससे रूगर्दानी ना करें। ये मैंडेट है सिटिंग गवर्नमेंट का, वो ये वोट लेके आई है, उसने ऐसे ऑफिसर तैनात करने हैं जो आवाम को रिलीफ दें, कब्जा माफिया को पकड़ें, झुकें मत, आपके दमादे आला के टेलीफोन के ऊपर लेट ना जाएं, आपको ना तो किसी बेकरी पे जाके थप्पड़ मारने देंगे अली इमरान साहब को। खैर अब तो वो 5 मंजिला प्लाजे की 7वीं मंजिल बेचने के बाद लंदन में रूपोश बैठे हैं, लेकिन अब कोई दमादे आला नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ना तो अपने किसी रिश्तेदार को कहीं लगाया है, ना इनका रिश्तेदार किसी लाहौर की सड़कों पे दंदनाते हुए किसी को मार रहा है, और ना ही ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अवाम में खौफ व हरास हो। उसके साथ साथ आज की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 38% अपने अखराजात कम किए हैं। हर साल अपने अखराजात कम कर रहे हैं। जो अखराजात पहले बढ़ रहे थे, उन अखराजात को साथ साथ कम किया जा रहा है। तो ये तो होगी पुलिस पे बात, जिसका पर्पज ये था कि जब तक पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, वो एक अच्छी पुलिसिंग ऑफर नहीं करेगी, तो फिर जो पिछली दहाइयों में सब कुछ चलता रहा है वही चलता रहेगा बदकिस्मती से, और लोगों को इंसाफ जो है वो कोई बहुत दूर की बात लगेगी। तो पहली बात तो ये जमा खातिर में रखें लोग कि अब वो नहीं चलेगा, अब अच्छे ऑफिसर काम करेंगे। अब हम आते हैं जी आज के मुद्दे के साथ जो दोस्तों ने शेयर किया। देखिए, किसी भी दुनिया में आज पूरी दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डियां और उसको उठाए बैठी हैं। एक तो सर्विस सेक्टर है। हर मुल्क जो है वो अपनी सर्विस, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वो भले सिंगापुर है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो फ्रांस है, वो माफ कीजिएगा वो जर्मनी है, उनके यहां जो सर्विस सेक्टर है वो 80% या उससे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और जो दूसरा पिलर उसके साथ आपकी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से उठाता है, वो वैल्यू एडेड जो आपका सेक्टर होता है वो उठाता है। क्योंकि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप वैल्यू एडेड के बगैर करते हैं, तो वो तो आप एक ऐसी लेबर का काम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए, जहां पे वो वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर असल पैसा वो बनाएंगे। तो हमारे लिए जो आपका सेक्टर है, वैल्यू एडेड सेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल के बड़ा करीब है, और वो बहुत ही दिल से चाहते हैं कि हमारा ये सेक्टर उठे। क्यों? इसमें 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है, अक्सर हमें बताया जाता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 4% थी, 5% थी। आम शहरी को समझ नहीं आती इसकी। अगर आप कर्जा लेके घर में तोड़फोड़ बने हुए घर को दोबारा तोड़ें, बनाएं, तो एक्टिविटी तो शुरू हो गई घर में कंस्ट्रक्शन की, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ होती अगर ये वैल्यू एडिशन को हम उठाते, सर्विस सेक्टर को उठाते, एक्सपोर्ट ड्रिवन आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी होती, ना कि इंपोर्ट ड्रिवन होती। जब आप कंजम्पशन ड्रिवन आपकी ग्रोथ होगी, तो आप कर्जा लेके ग्रोथ तो दिखा रहे हैं क्योंकि एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है। इवेंचुअली वो कर्जे पे बैक कहां से करने हैं? तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत जो है, वो लोग इस कमरे में बैठे हैं। हमें आपसे एंगेज करना है, हमें आपकी बात को सुनना है, हमें आपके साथ मिलके काम करना है। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं, मुशीर साहब हैं, वो भी, हमाद अजहर साहब भी, और मुझे अलमदार साहब बता रहे थे कि कुछ जो बिजली के रेट तय हुए उसमें जो आप लोगों की आवाज उस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरीके से बड़े यूनिट्स की पहुंची, बड़े ग्रुप्स की पहुंची। तो मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि जो आपकी आवाज है वो भी वहां पहुंचाई जाएगी, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स की बात हो तो आपका जो मुद्दा है वो भी वहां हो। लेकिन एक बात जहन में रखिए, अगर आपके वालिद ने 50 साल के लिए कर्ज लिया जिसका सूद का फिक्स रेट या इंटरेस्ट का फिक्स रेट 20% रख दिया और साथ लिख दिया कि ये मेरा बेटा भी पे करेगा, तो हर साल आपके ऊपर तो कर्जा ज्यादा चढ़ना है, क्योंकि 20% शायद ही चांदी बिजनेस बनाते हैं। अगर आप 20% इंटरेस्ट पे होंगे तो आप तो बिजनेस कर बैठे। पिछली हुकूमतें यही करके गई हैं आपके साथ और हमारे साथ। बिजली की पैदावार के जो एग्रीमेंट हैं वो इस कदर महंगे हैं कि हुकूमत जितनी भी कोशिश कर रही है, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि बिजली बन बहुत महंगी रही है
और बेच बहुत सस्ती रहे हैं। और अगर हम महंगी करते हैं तो इंडस्ट्री भी बैठ जाती है आपके सामने, आप इस बात के गवाह हैं। अगर आज हम इसकी 18 सेंट, 17 सेंट, 19 सेंट कर दें तो आप किधर से एक्सपोर्ट करेंगे? कौन लेगा आपसे ऑर्डर? कौन, कहां पे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, कहां पे आप जो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है वो खत्म हो गया। आपको दूसरे मुल्क जहां पे एनर्जी सस्ती है वो उठने ही नहीं देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट हुए 15 साल के गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ लंबे भी हुए, उन एग्रीमेंट्स की वजह से आप और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमें हाथ बांधकर समंदर में फेंका गया है। हम उन हाथों को कौमी तौर पे, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कौम को ऐसे एग्रीमेंट करके, जिससे मैं आप लोगों को सल्यूट करूंगा, बल्कि कि जो मौजूदा रेट हैं बिजली के, उनके ऊपर भी जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी पूरी दुनिया के साथ अभी भी पूरा आने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपको सराहा जाना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट के पास एक किटी है, उस पूरी किटी में कितनी बिजली किस कीमत पे आ रही है और किस पे जानी है, उस तमाम चीजों को हमने देखना है। फिर इन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि अगर आप मुझे अपनी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बना दें और आप कहें मैं 2 साल के लिए बाहर हूं, 2 साल गिल साहब आप चलाएं, जिस बंदे की तनख्वाह हो 3000 मैं कर दूं उसकी 8000, जिस बंदे का अलाउंस हो 1 तनख्वाह मैं उसकी कर दूं 3, जिसके पास 800 सीसी गाड़ी हो मैं उसको कर दूं 1800 सीसी। तो जब आप वापस आएंगे तो वर्कर तो मेरे से ज्यादा खुश होंगे सारे के सारे, राइट ना? आपसे तो खुश नहीं होंगे, लेकिन फैक्ट्री बैठ जाएगी। जब फैक्ट्री बैठेगी तो क्या फिर वर्कर खुश होंगे? नहीं, क्योंकि उस टाइम वो बेरोजगार हो जाएंगे। यही काम इन हुकूमतों ने किया। शॉर्ट टर्म में तो लोगों को सब्सिडीज दी, महंगे दामों बिजली खरीदी, महंगे दामों गैस खरीदी और लोगों को देते गए, आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर का रेट जो है वो नीचे रखा। अब जब वो फैक्ट्री दिवालिया के करीब पहुंची, लोग अनएम्प्लॉय होने लगे हैं, लोगों की नौकरी जाने लगी है, जिस दूसरे लफ्जों में कहें बिजनेसमैन की फैक्ट्री बंद हो रही है, तो अब वो तमाम लोग ये पूछते हैं कि ये सौदे ऐसे क्यों किए गए थे, जिसका इनको जवाब देना पड़ना है। हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, जो पूरे का पूरा सिस्टम है, वो इस तरह का सेट किया गया है कि आप दबा के लूटें, उसके बाद आपको अदालतें पूछें, या बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल लेट जाओ, या कहो कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं होती, मैं मैंने बिजनेस पढ़ाया बहुत देर यूनिवर्सिटी में, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी डरते हैं अकाउंटेबिलिटी से कि यार हमारी तरफ फलां आ जाएगा। जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो असल बिजनेसमैन मार्केट में रह जाएगा। 2 नंबर जो दिहाड़ीदार है, दिहाड़ीदार में गलत तरीके में नहीं कह रहा, गरीब की तरफ नहीं कह रहा, वो दिहाड़ी मार जो आपकी दिहाड़ी मारता है, जो आपके साथ ज्यादती करता है, आके जिग-जैग करके निकलता है, वो आपको नजर नहीं आएगा कहीं भी, वो वारदातिया नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसने पैसा ठीक तरीके से आपकी तरह मेहनत से नहीं बनाया होगा। तो ये आपकी जो 2-3 चीजें आपने मेरे सामने रखी हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके सामने आपकी आवाज जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जाएगी। उसके साथ साथ कॉटन की क्रॉप जो है, देखिए कॉटन को पाकिस्तान में सिस्टमैटिक तरीके से तबाह किया गया। आप अगर देखें तो, माफ कीजिएगा, आप अगर देखें तो जो हमारा साउथ का बेल्ट है कॉटन रिच बेल्ट है। आप अगर इंडिया से कंपेयर करें तो जो उनकी बैरन लैंड है, एरिड लैंड है, बरानी जमीन है, वहां पर उन्होंने ऐसी टेक्निक्स यूज की ओवर द ईयर्स कि वहां पर भी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। हमारी इंडिया से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इसलिए पर एकड़ ज्यादा नजर आती है कि हमारी जो फर्टाइल एग्रीकल्चर इरिगेटेड एरिया है वो ज्यादा है, उस पर ज्यादा कॉटन होती है। अदरवाइज अगर हम कंबाइन कर लें अपनी एरिड और वो दूसरी, हम भी उतनी ही एरिड जो बारानी जमीन है उस पर अगर काश्त करें तो हमारी जो यील्ड है वो बहुत कम हो जाएगी इंडिया से। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि जिनकी मिलें थी सेंटर में, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स होने के बावजूद शरीफ फैमिली ने किसी जमा खातर में नहीं रखा। दोनों मिल्स ऑर्डर्स के बावजूद साउथ में जाके लगाई ताकि वहां पे भी गन्ना हो और कॉटन खत्म हो जाए। और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। इसके साथ साथ जो सेस पे करनी थी टाइम पे, कुछ दोस्तों ने, कुछ जो
एसोसिएशंस हैं, उन्होंने वो टाइम पे नहीं की। कॉटन की फसल के ऊपर किसी किस्म की रिसर्च नहीं हुई। देखिए, मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं आपके दरमियान बैठा हूं बिजनेस कम्युनिटी में, लेकिन मैं इत्थे बह के अगर किसान दी गल ना करा तो वो जायज गल नहीं होएगी। अगर मैं जिमीदार दी गल ना करा तो वो जायज गल नहीं होएगी। साडी टैक्सटाइल इंडस्ट्री होवे, एप्टमा होवे या दूसरे दोस्त होण, सारे उन्होंने बिल्कुल बड़ा हार्डवर्क किया है, लेकिन लगातार किसान दा जिमीदार दा एहसास हुंदा रहा है। असी सस्ती कॉटन शॉर्ट टर्म चुकते रहे हैं और एक खुशी हुंदी रही है कि दुनिया तो सानू सस्ती लभ गई है, लेकिन ना असी उहदी रिसर्च दे उत्ते पैसा लाया, ना असी अपने किसान नू तगड़ा कीता, ना इंडस्ट्री और फार्मर दी कोआर्डिनेशन होई, ना असी उत्थे जाके वैलिड तरीके ना, मैं ये सिर्फ बिजनेसमैन नू नहीं कह रहा, पिछलियां गवर्नमेंटां भी ने ना किसान नू कोई प्रॉपर तरीके ना एजुकेट किया, ना लोन दिता, ना उहदी हेल्प की। इवेंचुअली की होया कि साडी अज दस रहे ने मैनू अलमदार शाह साहब कि जिहड़ी 14 मिलियन साडी बेल्स होणियां सन वो 9 मिलियन ते आ गईयां। हुण अज असी शायद उस तो भी घट होण। अज हुण की करना पेगा सानू? अज सानू बड़ी महंगी कीमत ते बाहरों कॉटन लैनी पेगी। ओ कमलिओ भरावो, जे उस वेले अपने किसान नू थोड़ा टीका ला दिंदे ताकत दा ते अज ये 14 की बजाय असी 18, 20, 25 ते खड़े होंदे ते सानू इत्थे कॉटन सस्ती लभदी। ये वो शॉर्ट टर्म असी चक्कर दे विच पए होए हैं। मुसीबत हमारे साथ ये बनी है, वारदातिये लोग यहां पर कॉरिडोर्स में बैठे। काश इमरान खान की तरह पहले कोई बंदा आता जिसका ना भाई, ना फुफ्फी, ना चाचा, ना मामा, कोई और नहीं था। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? हम आज भी अपनी मोहल्ले की सियासत करते हैं। यार वो मेरे वालिद की फातिहा पे आया था, वो मेरे भाई की फातिहा पे आया था, आप भी जाएं फातिहा पे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत बंदे को वोट कर दें, आप भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें जो सोशल आपका है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और है। क्या आप किसी ऐसे टीचर से अपना बच्चा पढ़वाएंगे जो नालायक हो लेकिन आपको सलाम बड़ा करता हो? हरगिज नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो आप कहेंगे अच्छा टीचर होना चाहिए। तो फिर लीडर ऐसा कैसे चूज करते हैं जिसका आपको पता है कि वो बेईमान है? और जब आपके पास एक लीडर है जिसका आपको पता है कि वो ईमानदार है, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई वजीर मशीर, मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई दिहाड़ी नहीं लगा सकते। जिन कपड़ों में आए थे उन्हीं कपड़ों में वापस जाना पड़ना है। जिस दिन उसे पता चला कि आपने करप्शन किया है, उठा के वो भले मैं हूं या कोई और हूं, उठा के कबीना से बाहर मारेंगे। तो बुनियादी तौर पर आपकी आवाज भी पहुंचेगी, लेकिन आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आपने जिस तरीके से, आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, आपने जैसे कोविड के दिनों में अपने गरीब के साथ आप खड़े हुए हैं, इसका सिला आपको कोई हुकूमत नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते। इसका सिला इंशाल्लाह आपको अल्लाह की जात देगी। आपने गरीब परवरी की, आपने गरीब के सर पे हाथ रखा। आप देखेंगे कि जैसे पूरी दुनिया आज पूछती है, वो भले बिल गेट्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर को फोन करके पूछते हैं कि जी तुसी कीता की है, एक कोरोना किस तरह खत्म हो गया? इसका कोई साइंटिफिक जवाब है? सर नहीं है। इसका एक ही जवाब है, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फैल हम पे अल्लाह ने, और आप जैसे सारे दोस्त जिन्होंने साथ सदका जारिया किया, गरीब के सर पे हाथ रखा। मुझे पता है कि यहां वो लोग बैठे हुए हैं ज्यादा तादाद में जिन्होंने अपने अपने यूनिट्स में 3-3 महीने की सैलरी दी और उसके साथ राशन भी दिया गरीबों को। ये वो दुआएं थी, ये वो एज अ कौम इकट्ठे होके, एकजुट होके हम सब ने अल्लाह के हुजूर माफी भी मांगी, गरीब के सर पे हाथ भी रखा, और अल्लाह ने किसी दुनिया के मुल्क को वैसे नहीं नवाजा जैसे हमारे मुल्क को नवाजा। एक और बात पे आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान मुल्क थे सब में मस्जिदें बंद थी। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान मुल्क थे सब में मस्जिदें बंद थी। मैं उन मीटिंग्स में मौजूद था जब यह प्रेशराइज किया गया प्राइम मिनिस्टर को कि मस्जिदें बंद करें। प्राइम मिनिस्टर ने वाशगाफ एक बात कही कि मुझे अपने लोगों का पता है, वो अल्लाह के घर में जाएंगे तो एहतियात करेंगे और अल्लाह भी रहमत करेगा। मैं अल्लाह का घर बंद नहीं कर सकता, ये मेरे पास पावर नहीं है कि मैं अल्लाह का घर बंद कर दूं जहां पे इबादत होनी है। तो शायद हम तो सोचते हैं शायद उसी के तफैल अल्लाह ने। आप देखें, या तो मुझे कोई मिसाल दे दें कि दुनिया में कहीं और वो हुआ हो जो हमने किया है एज अ कौम। हम जब कहता हूं तो मैं सिर्फ हुकूमत नहीं कहता, आप सब इकट्ठे हैं, हम एक मुट्ठी थे सारे के सारे। तो जैसे हमने कोरोना से लड़ा है, आप यकीन कीजिए कि ये जो नए आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट हुए हैं
ओवरऑल आपको नीचे आता नजर आएगा। जो GIDC की आपने बात की है, उस पे भी प्राइम मिनिस्टर 2 मीटिंग्स ले चुके हैं। उनको आपकी बड़ी फिक्र है। जब ये 48 किस्तों की डिमांड है बेसिकली जी, उनको आपकी बड़ी फिक्र है। आपकी ये डिमांड मैं लेके जाऊंगा। उनको आपकी फिक्र है। उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या बिजनेसमैन ये पे कर लेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं इसलिए ये बातें नहीं कर रहा कि मैं आपको एक हुकूमती नुमाइंदा हूं तो बता रहा हूं। वो जब मीटिंग करते हैं तो उनको अपने सारे जितने तबके होते, और असल में उनका जो इंटरेस्ट है शायद आपके लिए ना हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट है जो आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब मजदूर है। प्राइम मिनिस्टर का मैं आपको अंदर की बात बताऊं, असल इंटरेस्ट उस बंदे में है, उस मजदूर में है। और प्राइम मिनिस्टर का दिल यह है कि अगर आप फले फूलेंगे, अगर आप काम करेंगे, अगर आपके पास को पसली थी तो आपने कोरोना के दिनों में 3 महीने की तनख्वाह दी। अगर आप ही को निचोड़ा हुआ होगा हमने, तो आप अपने गरीब की परवरी भी नहीं कर सकेंगे। तो आप ये जहन में रखिए, हुकूमत इंशाल्लाह आपके साथ उस तरीके से सलूक करेगी जैसे अपने भाइयों के साथ अपने मुल्क में किया जाता है। ये वो हुकूमत नहीं है कि वो आपको कॉर्नर कर दें या आपके साथ ऐसा सलूक करें। हम ऊपर भी इकट्ठे जाएंगे, हम नीचे भी इकट्ठे जाएंगे। हम एक कौम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो ले लें। कराची के मामलात में ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी आई थी, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। अब रिलीफ फंड की जो मैसेज दी जाएगी, कहा जा रहा है कि खुद से वफाक जो है वो वहां पे जाके तकसीम करेगा। कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान किस तरह से अमल दरामद होगा उसके हुक्म से, तो फिर आमने सामने। जी देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो आपको यह समझ आनी पड़ेगी कि जो कराची है 18वीं तरमीम के बाद जो तमाम तर आपके इख्तियारात हैं वो आपकी सूबाई गवर्नमेंट के साथ है। ये मैं पॉलिटिकल स्लोगन नहीं दे रहा, बल्कि पंजाब में हमारे पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, फंड्स भी सारे हमारे पास हैं, अथॉरिटी भी हमारे पास है, जिम्मेदारी भी हमारे पास है। इसी तरह कराची में है। बदकिस्मती से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो पिछले 12 साल से लगातार हुकूमत कर रही है, अगर वो नालों के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जहां से पानी गुजरना था वहां से, अगर वो वहां पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हो या दूसरी ऐसी इमारतें हों, घर हों, वो अगर वहां पर कब्जा माफिया के थ्रू कब्जा करके वहां बिल्डिंग्स बना देंगे, तो यहां पर चौधरी बूटा साहब बैठे, उनको पता है कि पानी तो अपना राह फिर बनांदा है जिधर दा भी होवे। सो पानी ने अपना रास्ता बनाया और अनफॉर्चुनेटली उससे सैलाब आया, गरीबों को बड़ी परेशानी हुई। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल, हालांकि ये जिम्मेदारी ज्यादा आपकी सूबाई गवर्नमेंट की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक कदम बढ़ के कराची के लिए एक बड़ा पैकेज दिया। अब कराची में सिंध के जो गवर्नमेंट है उनका प्रॉब्लम है कि वो इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं। मेरी जाती राय यह है कि वो शायद ये माल पानी जो ऐसे पहले खाते रहे, वो चाहते हैं ये माल पानी उन्हें मिल जाए। ये जहन में रखें, वो भी मैं कैमरे के थ्रू बताना चाहता हूं। ये जिसका नाम इमरान खान है, ये दफ्तर में आपको 2 बिस्किट से ज्यादा नहीं देता। आप इसके होते हुए माल नहीं खा सकते, ये आपको माल नहीं खाने देगा। आपके हाथ में हम पैसे नहीं देंगे, पैसे अवाम पे डायरेक्ट लगेंगे। जो दिल करता है आप कर लें, इंप्लीमेंटेशन इवेंचुअली करेंगे, लेकिन इनके हाथ में पैसे नहीं देंगे। दिए तो किसी पापड़ वाले ने, रेडी वाले ने बाहर भेज देंगे। क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपने अपने नाकदीन पे भी बड़ी तनकीद भी की है नून वगैरह पे, तो नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेटस है? उन्हें आपकी हुकूमत वापस लाएगी या नहीं लाएगी? और कल उनकी पेशी भी है, उसमें भी कोई इश्तिहारी वगैरह देगी? सवाल है जी सर। अभी नवाज शरीफ के वकला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो है ना वो दरखास्त दी है कि नजरसानी की जाए। नवाज शरीफ का कहना है कि मैं अभी सरेंडर नहीं कर सकता, अभी मुनासिब नहीं है, तो अभी उन्होंने दरखास्त दायर की है। देखिए बात यह है कि मैं वो वाहिद शख्स था जिसने पूरे इस टाइम में, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मुझे चांस मिला, मेरी पार्टी ने मुझे भेजा, 3 दफा मैं उन्हें जेल में मिला, मेरी उनसे जेल के अंदर मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। मुझे तब से पता था वो बीमार नहीं है। जैसे भी वो मैनेज करके यहां से निकले, अब तो फैसला नून लीग के वर्कर ने करना है। एक दफा वैसे तो मोमन एक सुराग से 2 दफा नहीं डसा जाता। एक दफा वो जद्दा भागे थे ये कह के कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। फिर साद हरीरी वापस आए, उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट किया, फिर कहा 5 साल का किया था, 10 का नहीं किया था, फिर 10 का निकला। इस दफा भी वो वही कार्रवाई करके गए हैं। अभी चंद दिन पहले बयान आ रहे थे कि मियां साहब वापस आना चाहते हैं, हमने मना किया कि वापस ना आए।
और ये ड्रामा हम अल्ताफ हुसैन साहब का देखते रहे। वो कहते होते थे मैंने वापस आना है, उनकी कमेटी कहती थी आप प्लीज वापस ना आए, और ये वो कर रहे हैं जैसे वो कहते थे ना नहीं भाई, रो रो के कहते थे। अब ये भी कह रहे नहीं मियां साहब ने कोई नहीं जे आना। ये अब नून लीग के वोटर को सोचना पड़ना है कि जो शेर की खाल के अंदर एक बकरी थी वो भाग गए हैं। अब ये सोचें कि क्या आपने वाकई ऐसे लीडर को वोट करना है? कल को कोई और कौमी मुश्किल मरहला होगा तो ये किधर को जाएंगे उस टाइम? तो मियां साहब झूठ बोल के गए हैं। वो मेरे बुजुर्गों की एज के हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं इस मामले में कि वो मेरे से बड़े हैं, सियासी तौर पे नहीं करता क्योंकि वो करप्ट हैं। मेरी दुआ है कि मियां साहब को अल्लाह मियां लंबी जिंदगी दे, लंबी सेहत दे, वो यहां आके अपने गुनाहों की कफारा अदा करें, यहां के जेल भुगतें। वो बीमार नहीं है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो झूठ बोल के उन्हें बीमार करते हैं उन्हें हदायत भी दें और उन्हें कुछ खौफे खुदा भी दें कि एक सेहतमंद बंदे को वो बीमार कर रहे हैं। बहरहाल वो कोर्ट में, अब मैंने तो चंद दिन पहले ट्वीट कर दिया था कि वो अब ये कहेंगे मैं सख्त बीमार हूं, नहीं आ सकता, तो उनकी नब्ज पे मेरा हाथ है, मुझे पता है उन्हें क्या बीमारी है। सर आप देखें, बात सुने, ये बिजनेस फोरम है, अगर आप बिजनेस का सवाल भी कर लें। एक सेकंड, एक सवाल ले लें, बस आखिरी सवाल। कल काबीना की मीटिंग हुई है, वहां पे मुख्तार साहब ने एहतजाज भी किया है कि पंजाब की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई नाकस हो चुकी है। पंजाब के मीडिया के इख्तियारात जो है वो रोज ब रोज खत्म होते जा रहे हैं। क्या ये मामला है कि पंजाब में इस तरह की सिचुएशन क्यों आ रही है? किसने एहतजाज किया जी? गुलाम सरवर साहब। अच्छा, नहीं, मैं काबीना में था, ऐसा उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया उसमें, लेकिन हमारे तमाम, ये वाहिद पार्टी है जिसने आपके सामने जितनी उन्होंने पूरी जिंदगी की सारी हुकूमतों में काबीना की मीटिंग्स की थी, उतनी इन इमरान खान ने 2 सालों के अंदर उतनी काबीना की मीटिंग्स की। जितने उन्होंने पूरी जिंदगी में काबीना के एजेंडे निपटाए थे उतने, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी की उनकी हुकूमतों की बात कर रहा हूं, उतने 2 साल में। लोग खुल के बात करते हैं, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर होनी चाहिए, कंपेयर करें अगर आप उनसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन हम कहते हैं और भी बेहतर होनी चाहिए। आप जरा अगर आप बिजनेस की को बात कर लें तो वो बेहतर। मेरी बात सुने, चौधरी नवाज अशरफ नवाज साहब से बोलो। आपने सब सवालों का जवाब दिया। मुझे, मैंने आपको पहली दफा सुना है, टीवी पे आप रोज सुनते थे, लेकिन कार्टन जो है ना, कार्टन हमारी लाइफ लाइन है। जी बिल्कुल, कार्टन के लिए हमें बड़ी तवज्जो की जरूरत है। हमारा फार्मर भी खुश होगा। हमारी जो टेक्सटाइल सारी बैठ रही है ना, सिर्फ इस वजह से है कि हमारी कार्टन, अग्री करता हूं, हमारी कार्टन शार्ट होगी, महंगी होगी, प्लस हमारी बिजली, हमारी एनर्जी बहुत महंगी हो रही है 20% ये दोनों चीजें, ये अभी हमें थोड़ी जो शाह साहब ने कहा है ना, ये हमारा पॉलिस्टर, अब हम कार्टन से पॉलिस्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं, सारी दुनिया शिफ्ट हो रही है। पॉलिस्टर पे फौरन ड्यूटी खत्म होनी चाहिए। 2-3 4 बंदे हैं, वो जाके मिलते हैं, वो जाके सारी पॉलिसी अपने हिसाब से बना लेते हैं। माफिया है वो और इसके कॉटन के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बहुत जरूरी है। और इसके लिए कॉटन सपोर्ट फंड जो है वो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो पैसे थे, पैसे रखे भी जाते रहे हैं, लेकिन हमारे ना सहसा नहीं था। हमारे पास ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, हमारे लिए ब्लेसिंग है। हमारे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक कैमर के साथ मिलकर, PHMA के साथ मिलकर एक पूरा बनाया जाए कि उसको रिसर्च करें, हम इसको मॉनिटर करें। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये कभी इसको हम 100 रिसर्च सेंटर है, जीरो ये हमारे यहाँ से जा रहा है। नहीं खत्म होता है। मेरे भाई हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर काउंसिल के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ गन्ना लग गया है, हम अगले 50 साल हम वहाँ कार्टन ग्रोइंग नहीं कर सकते, ग्रोइंग नहीं कर सकते। ये NCR के चेयरमैन इनके भाई बड़े हैं, ये डॉक्टर हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग है। वहाँ एटमोस्फेयर चेंज हो जाता है, भुट्टा साहब बैठे हैं। एक इसमें मैं आपको बात बता साहब की बात सुन लें जी, और एक SP स्टोर से है, ये दोनों मैं क्विकली आपके ये कॉटन का अगर क्विकली आपको जवाब दे दूं। कॉटन का एक बात जहन में रखें कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो CPEC का हिस्सा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके एग्रीकल्चर को CPEC का हिस्सा बनाया। हमारी चाइना, आपको पता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ, हमारा करीब तरीन दोस्त है, और चाइना हमें हेल्प करेगा इंशाल्लाह। उसके साथ मिलके हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाएंगे, यील्ड भी बेहतर होगी, और ये तमाम साइंटिफिक चीजें हम लेके आएंगे। जी दुमट साहब।
السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے تاجروں کے مسائل سن رہے ہیں۔ علمدار شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کافی ٹیکسٹائل کے بارے میں آپ نے ڈسکس کی اور فلور ملز کے بھی آپ کو مسائل کے بارے میں بتایا۔ جو فلور مل انڈسٹری ایز اے ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن، سر اس وقت یقین کریں کہ تباہی کے دھانے میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری جو پر باڈی کیپیسٹی ہے 24 آورس کی، وہ تقریباً 200 بوری پر بیگ ہے، لیکن ہمیں اس وقت 24 بوری سے زیادہ نہیں مل رہی جتنا کوٹا گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے۔ اس حساب سے ہماری فیکٹری 2 سے 2.5 گھنٹے 24 آور میں چلتی ہے۔ ہم کس طریقے سے اس جو کی لیبر ہمیں کاسٹ پڑ رہی، دوسرا ہم لوگ الٹا نقصانات کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش کر رہا ہوں، جس طرح علمدار صاحب نے کہا ہے کہ بجلی کے پیکج میں ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے یا ہماری کوئی بات سنی جائے، آپ ہمارا کوئی پروگرام رکھیں پلیز۔ تھینک یو۔ شہباز صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ایلوکیشن کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیصل آباد میں اس وقت جتنا گورنمنٹ ہمیں کوٹا دے رہی ہے وہ بالکل ناکافی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے ہمیں ضرورت ہے تقریباً 24 لاکھ بوری جتنا ہم نے اپریل تک جانا ہے، لیکن یہاں سے ٹینڈر ہو کے ہمارے گندم فیصل آباد ڈویژن سے جا رہی ہے دوسرے اضلاع میں۔ تو گزارش ہے کہ پھر ہم یہ پریکٹس کریں گے کہ دوسرے اضلاع سے گندم اٹھا کے یہاں کر کے اتنا سرمایہ لگا کے دوبارہ یہاں لے آئیں گے اس کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے۔ اس پہ بھی ذرا پلیز ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ شہباز صاحب آپ یہاں تشریف لائے، ایک فورم پہ آپ نے ایڈمٹ بھی کیا کہ یہ جو فورم ہے اس سے آپ کے ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے اور اہم فورم، تو کیا آپ ان کے لیے کوئی شارٹ ٹرم پیکج بھی لے کے آئے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج کا ہی بیان ہے کہ 500 افسران بھی تبدیل کرنے پڑے ہیں تو وہ تبدیل کریں گے، تو کیا اس میں کوئی ایک آدھ سیاسی شخصیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی مولوی صاحب آپ کا بڑا گہرا سوال ہے، لیکن دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تبدیلی وہاں نہیں آتی جہاں پہ آپ مطمئن ہوتے ہیں بالکل ہر چیز سے، اور آپ سارے ماشاءاللہ ویلیو ایڈڈ بیٹھے ہوئے ہیں کرنے والی انڈسٹری کے لوگ، آپ لوگوں کو ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ میں بھی آگے وہ نکلتا ہے جو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف کریٹک کرتا ہے، جس کو اپنا بنایا ڈیزائن، اپنی بنائی پروڈکٹ لگتی ہے ابھی بھی ہلکی ہے، میں نے اور امپروو کرنا ہے۔ تو جو پرانی حکومتیں تھیں ان کا طرز حکومت یہ تھا کہ آپ ایک آفیسر لگائیں، جیسے میں اگر فیصل آباد آیا ہوں مجھے سلوٹ پڑ رہے ہیں، میری آؤ بھگت ہو رہی ہے تو سب اچھا ہے، آپ لوگوں کی بھلے ریٹ نکال دی انہوں نے، تو پھر تو تبدیلی کرنے کا کوئی کسی آفیسر کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکومت وقت کو تو جو ہمارا سسٹم ہے وہ سلام ہی کرتا ہے۔ لیکن یہ حکومت بلیو کرتی ہے کہ جس منشور پہ ہم عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے، ہو سکتا ہے ہمیں شاید ایک عمر لگ جائے ہماری قوم کو وہاں تک پہنچتے ہوئے جہاں ڈیولپڈ نیشنز پہنچی ہوئی ہیں، لیکن جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے ہم سٹیٹس کو کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ ہم ہر طرح کی تبدیلی بھلے سیاسی کرنی پڑے بھلے بیوروکریٹک کرنی پڑے، ہم ہر طرح کی تبدیلی کریں گے، کیونکہ جس شخص کا نام عمران خان ہے وہ صرف ایک جگہ پہ جواب دہ ہے اور وہ ہے اللہ کا حضور۔ وہ جب حکومت کر رہے ہیں وہ اپنے خدا کو جواب دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری جو وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں سب سے زیادہ وہ اپنے غریب کے لیے سمجھتے ہیں۔ تو جب تک ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سسٹم غریب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، جب تک اس سسٹم میں سائیکل چور اور بینک کا قرضہ لے کے کھا جانے والے کو عدالتیں برابر سے سزا نہیں دے پاتی، ان کو برابری کی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، ہم تبدیلی کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے بھلے کوئی کہے کہ جی یہ اتنی تبدیلی کر دی، وہ اسی لیے کی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، آئندہ بھی کرنی پڑی آئندہ بھی کریں گے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا سر، جب کوئی بھی پینڈیمک ہوتا ہے، گندم مہنگی ہوتی ہے یا چینی مہنگی ہوتی ہے، تو وفاق کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہے، اس کے پیسے صوبوں نے خود لینے ہیں۔ جب سر افسران کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو وفاق کی اس میں اتنی انٹرفیئرنس کیوں ہے؟ اچھا دو باتیں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے پنجاب کے بارے میں آپ کو کبھی نہیں کہا کہ وفاق یہ صوبائی معاملہ ہے، ہماری حکومت ہے وہاں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ پنجاب میں اگر گندم کم ہو جائے گی تو آپ مجھے ابھی تو آپ کو پتا ہوگا بڑے بڑے مشہور فوڈ منسٹر ہیں، ان سے پہلے کون تھے پتا ہے آپ کو؟ کون تھے؟ پنجاب میں ہاں جی، نہیں پتا نا آپ کو؟
तो जिम्मेदार इमरान खान है उसके, हम हैं जिम्मेदार, हम बैठे हुए हैं सामने आपके। तो पंजाब के हम जिम्मेदार हैं, हमारा लीडर जिम्मेदार है। और जब किसी और सूबे में जहां किसी की और की हुकूमत है तो वहां 18वीं तरमीम की वजह से वो जिम्मेदार है। फैसलाबाद में 69 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं 6 माह में। राना सनाउल्लाह साहब का आप ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे थे, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में 70 के करीब 6 माह में फैसलाबाद में पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। इधर भी नजर खानसानी करें कि लोगों को मारा कोई एक मुस्लिम लीग नून का बंदा मारा गया? एक बयान आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है? आपने कोई एक स्टोरी फाइल की कि मुस्लिम लीग नून का फलां काउंसलर, फलां चेयरमैन, फलां वार्ड मेंबर जो है उसको पुलिस ने जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया है? नहीं। आपको अगर पुलिस के ऊपर हमला होता है कहीं पे भी, ये जो मैंने आपको नंबर दिए ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिए कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है आपने, ये नंबर आपको इसलिए दिए कि वो नंबर आपको अब नजर नहीं आएंगे कहीं भी। जो लाहौर के अंदर होता रहा वो अपने सियासी मुखालफिन को मरवाया जाता था। पहले शहबाज शरीफ एंड फैमिली करती थी, फिर इनकी नंबर 2 टियर जो लीडरशिप थी, फिर नंबर 3, और वो होते होते नीचे गरीब आदमी तक वो जो है कत्लो गारत आती थी। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलें जी आखिरी ले लेते हैं, मेरा शहर है इसलिए आखिरी सवाल है। यहाँ पर 7 सीटें हैं एमएनए की, पीटीआई की। लोग यहाँ पर सीवरेज सिस्टम की वजह से आपके एमएनए के लिए सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, उनकी तस्वीरें जो गटरों के ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये, पिछले साल सर 11 अरब का पैकेज अनाउंस किया था वज़ीर आला ने, उसका 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। 13 अरब का फिर वो पैकेज अनाउंस कर गए हैं, उसका क्या बनेगा? जो आपके फैसलाबाद के एमएनए हैं, स्पेशली फरक हबीब साहब, रजा नसरुल्लाह गुम्मन साहब और दूसरे साथी, उन्होंने ये बहुत दफा वॉइस किया है ये कंसर्न वहां पर, वो आपका मुकदमा भरपूर लड़ते हैं। आज भी मीटिंग हो रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में। फैसलाबाद में पिछले साल उस स्पीड से तरक्याती काम नहीं हुए, उसकी बहुत सारी वजह थी। आपके सामने जो मुल्की मईशत थी, जिस हालत में वो खजाना छोड़ के गए थे, कुछ पास नहीं था हुकूमत के उस टाइम। अब हमारे माली हालात इंशाल्लाह बेहतर हुए हैं, आप इस साल फैसलाबाद में भी उसकी बेहतरी देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन जी कि प्राइम मिनिस्टर फैसलाबाद कब आ रहे हैं? जल्दी इंशाल्लाह, जल्दी उनका बना।